Application of partial differential equation. In this video, we will study applications of partial differential equations. This is your unit 2. First of all, we understand what does mean by applications of partial differential equation. Actually, many physical and engineering problems, when formulated in the mathematical language, give rise to partial differential equations. Besides these, partial differential equation also play an important role in the theory of elasticity, hydraulics, etc. Okay, so the general solution of a partial differential equation in a region capital R contain arbitrary constant or arbitrary functions. The unique solution of a partial differential equation corresponding to a physical problem will satisfy under certain conditions of the boundary at that region capital R. Do you understand? Do you remember that how will we solve the differential equation? We solve the differential equation by understanding the boundary condition as well as the initial condition. This is same we will study in the partial differential equation. When we solve the partial differential equation, we need two type of condition, that is boundary condition and the initial condition. What is the boundary condition? Boundary condition are those conditions which are given at the boundary of the region capital R, in which these partial differential equations are satisfied. And initial condition are the condition which are mentioned at time t equal to 0. They are known as your initial condition. Then the solution of the partial differential equation is the combination of this initial condition and boundary condition. These two together will give the solution of partial differential equation. So in this first solve this method, we first have the method that is known as method of separation of variable. Method of separation of variable, what does it do? It actually changes partial differential equation into ordinary differential equation, and the solution which we are use in the ordinary differential equation we will also use in this partial differential equation and find the solution of partial differential equation. How will we do that? Now let us understand by the help of the numerical done in this method. Suppose first numerical is given as use the method of separation of variable to solve the equation del u over del x is equals to 2 del u over del t plus u, given that, देखो आपको given है, given that u of x0 is equals to 6 e to the power minus 3x. मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, they are very much lengthy to solve, but they are damn easy. And I want to tell you the step that is involved in solving this type of question. So please carefully understand what are the steps I am explaining here. Okay. So in the solution, first what you have to assume that, see, in the numerator you have the u and in the denominator you have the x and t. So in this solution, first you have to assume that let u is equals to capital X capital T, capital X capital T. तो किसका आपको कैपिटल फॉर्म करना है? जो भी वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में, एंड which will be equal to this, जो भी वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में. ठीक है. Let u is equals to capital X and capital T, where capital X is a function of small x only and capital T is a function of small t only. मतलब कैपिटल एक्स सिर्फ एक्स का फंक्शन, स्मॉल एक्स का फंक्शन है, और कैपिटल टी सिर्फ स्मॉल टी का फंक्शन है. अब जब हमने ये मान लिया, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी और इसकी. देन डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश टी. यही तो होगा. जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो खाली x पर ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि t तो x पर डिपेंड करता नहीं है. एंड डेल u ओवर डेल t विल बी इक्वल टू x t डैश. जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t पर फर्क पड़ेगा. देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वाली और ये वाली,
हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसमें रख लेते हैं। तो क्या आ गया, एक्स डैश टी इक्वल टू 2 एक्स टी डैश प्लस एक्स टी। देखो u की जगह एक्स टी, यू टी डैश डेल यू ओवर डेल टी की जगह एक्स टी डैश, डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह एक्स डैश टी। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को एक्स टी से आप डिवाइड कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, एक्स टी से। तो क्या मिल गया हमें, एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 टी डैश अपॉन टी प्लस 1। ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब देखो इसको, अब कैसे हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, हम क्या कर लेते हैं, इसको हम किसी भी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। सपोज हमने मान लिया नेट इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। हर केस में हम माइनस पी स्क्वायर ही मानते हैं। इसका कोई रीजन नहीं है कि माइनस पी स्क्वायर क्यों माना, के क्यों नहीं माना, के स्क्वायर क्यों नहीं माना, आप कुछ भी मान सकते हो। बट ये पाया गया बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके कि व्हेन वी विल टेक द that is why we take minus p square, but in many problems we take p square or p, just like if we are stuck in any condition where we do not get the solution, then we will interchange this, we can interchange this constant. Okay, but in the mostly problem we have to take minus p square. Okay, now see how will you solve this. First of all you will take this equal to minus p square and then you will take this side equal to minus p square. First मैंने लिया x dash upon x is equals to minus p square. तो ये हो गया आपकी x square x dash plus p square x is equals to 0. ठीक है, अब आप देखो इसको आप सिंपली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर p स्क्वायर x. ओके, नहीं मतलब आप इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं ना, x डैश इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x डैश इज इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर x। तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर माइनस p स्क्वायर स्मॉल x। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यही पावर चढ़ जाती है स्मॉल x के साथ, चढ़ती कैसे, ये सोल्यूशन आया कैसे, है ना। तो देखो इसी इक्वेशन को आप देखो, क्या है आपका x डैश इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर है x। आप x डैश को क्या लिख सकते हो, dx ओवर dx माइनस पी स्क्वायर x। अब इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा dx ओवर x इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर x प्लस सी। हटा दिया तो x इज इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर, या आप ऐसे लिख लो, इसको सीधे लिखो, x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर x प्लस सी, which can be written as minus p square x into e to the power c. e to the power c को मैंने मान लिया c1 e to the power minus p square x। देखो ये यहाँ की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे आया। आप कैसे लिखोगे, आपके पास इक्वेशन है x डैश इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर x, तो अपने आप क्या आ जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर, ये वाली पावर चढ़ जाएगी इसी वेरिएबल के स्मॉल के वेरिएबल के साथ। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गई हमारी एक साइड सॉल्व। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट साइड सॉल्व। नेक्स्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा, 2t डैश अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहां से हमारा t डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी अपॉन 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। तो देखो इसी फॉर्म में आ गई, है ना। तो यहां से हमारा टी की कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 e टू दी पावर, ये पूरी पावर चढ़ जाएगी, माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 और स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई x की, ये वैल्यू आ गई t की। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड t इन इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, from equation 1 we get u of small xt is equals to
x की जगह रख दिया हमने c1 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर x, और t की जगह रख दिया c2 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1/2t। बच्चों एक तो सोल्यूशन हमारा ये हो गया, लेकिन हमें सिंस ये कंडीशन और दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, तो हमें ये कंडीशन और लगानी पड़ेगी। सिर्फ ये कंडीशन आपको गिवन है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप लिखोगे, कंडीशन का क्या मतलब है, एट टी इक्वल टू 0 यू की वैल्यू ये गिवन है ना, तो आप लिखोगे पुट एट टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, पुट एट टी इक्वल टू 0 u इज इक्वल्स टू 6 e टू द पावर माइनस 3x इन इक्वेशन 2। तो आपने u x 0 की जगह रख दिया 6 e टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू c1 c2 आ गया, t की जगह 0 रखेंगे, e के पास 0 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस पी स्क्वायर x आ गया। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, c1 c2 इज इक्वल्स टू 6 एंड p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि माइनस 3x कट गए, एंड p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, आप ये पूरी जो वैल्यू मिली है आप अपने फाइनल सोल्यूशन में रख दीजिए इक्वेशन 2 में। तो u x t इज इक्वल्स टू c1 c2 की जगह आपने रख दिया 6 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर x, तो p स्क्वायर की वैल्यू 3 है, माइनस 3x। अब p स्क्वायर की जगह आपने 3 रखा, 3 प्लस 1 इज 4, 4/2 इज 2, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 2t। दिस इज योर final solution. This is the answer.